Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, we are very happy to bring another practice series. See, when we talk about GMAT or any competitive exam, a lot of your performance on the D day would depend that how sincerely you have put in the efforts and how rigorous you were while you were practicing, right? So, in a way to help you out, we have brought this new series and we'll be doing some very interesting reading comprehension sets. So let's get started with the first set today. My name is Juhi Narula. So I'll give you some time to read the passage, right? And I'll step aside. So whenever we see a recorded video, the idea is not to just sit, relax, and watch the video. You are not watching any series on Netflix. You should be trying to solve it parallelly. I'll give you some time in case you feel like that the time provided by me was less, then you could pause the video, you could read the entire passage, and then you can, adjust the speed, pause, play the way you would want, right? So I'll just step aside so that you can read this nicely. So I hope you guys have read it. In case you would need more time, you could pause the video, right? Meanwhile, I'll just try to explain you this particular passage. So we have done a lot of detailed videos on how you should read the passage, and we have talked about a strategy called mapping, and that's what I will apply here while I solve this passage. The narrative, narrative, that means the storytelling that's happening is that जब भी technical progress होता है inevitably, मतलब you cannot deny that, you cannot escape that, it displaces human labor. This has waxed and waned for centuries. मतलब कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ डिसअग्री करते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है. Echoing from the days of the Luddites to the more recent. तो मतलब how it started Luddites के डेट से present discourse मतलब जो discussion हो रहा है around automation and artificial intelligence, this has been a part of the centuries, right? While it is undeniable मतलब आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते that technology renders certain professions obsolete. अब देखिए एआई आया है तो देयर आर सम जॉब्स विच आर कटिंग, राइट? यू आर लूजिंग सर्टन अपॉर्चुनिटीज और मार्केट से वो जॉब्स जा रहे हैं. हिस्ट्री हैज रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड अ काउंटरवेलिंग ट्रेंड. तो काउंटरवेलिंग ट्रेंड क्या है कि भाई ऐसा तो है कि देर आर सर्टन प्रोफेशंस विच गेट आउटडेटेड, बट व्हाट इज द काउंटरवेलिंग ट्रेंड? So you could write what is the counter trend? New technology give rise to novel industries, right? तो पहले ऐसा होता था कि दुकानें होती थी, अब शॉपिंग मॉल से तो ऐसा नहीं है, शॉपिंग मॉल्स में लोग नहीं लग रहे हैं, राइट? और अगर ऐसा नहीं है कि अगर ओला आ गई है तो उसमें जॉब्स जो पहले ऑटो वाले के चले गए वो वहां पर लग रहे हैं. तो आइडिया इज दैट देर आर न्यू जॉब्स विच आर ऑल्सो क्रिएटेड, राइट? So to novel industries, so to new industries and employment paradigms. Nevertheless, the pace and nature of modern advancements challenge the reassuring. तो जिस हिसाब से, however, अब क्वेश्चन ये है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो रहा है, दिस इज डेफिनेटली चैलेंजिंग द रीअश्योरिंग. तो जो रीअश्योरेंस होता था कि ठीक है, देयर सर्टन जॉब्स व्हिच हैव बिकम ऑब्सोलीट, बट इन द न्यू जॉब्स दैट विल कम इनटू द मार्केट. सो उस आइडिया को जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट था उस पर अब देयर इज अ कंसर्न. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's read this. चलिए, so let's read this. Consider the agricultural revolution. The author कुछ examples दे रहा है, तो आप क्या करोगे? Okay, we have talked about agricultural revolution. What happened there? Mechanized tools drastically मतलब majorly reduce the need for farm hands. Yet, पर फिर भी क्या हुआ कि जो displaced workers थे, they found employment in growing manufacturing sectors. तो ऐसा था कि अच्छा आपको क्योंकि टूल्स आ गए और एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स हो गए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो लोग डिस्प्लेस हुए थे वो वहां पे कंज्यूम हो गए. अ सिमिलर ट्रेंड फॉलोड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड मिलियंस इवन एज आर्टिसनल ट्रेड्स डिक्लाइंड. हाउएवर अब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल देके अब ऑथर ने ट्रांजिशन वर्ड यूज कर लिया, हाउएवर, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? कंटेम्पररी ऑटोमेशन मतलब जो प्रेजेंट टाइम में
ऑटोमेशन हो रहा है, सब कुछ मशीन ड्रिवन हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर एआई की बात करें, राइट, तो ऑपरेट्स ऑन अ कोग्निटिव रादर देन मेयरली मैकेनिकल लेवल, सो इट्स लाइक अ मेंटल इन्वॉल्वमेंट, राइट. Unlike earlier machines that supplanted manual labor, AI systems encroach upon tasks. तो AI कहाँ पे encroach कर रहा है? It is not the manual effort. AI encroach कर रहा है reasoning में, pattern recognition में, and even emotional engagement. जो domains थे, जो particularly quintessentially humans थे. तो पहले क्या हो रहा था कि अच्छा manual effort को replace किया जा रहा था, mechanical effort को machines replace कर रही थी. अब ह्यूमन पर्टेनिंग स्किल्स को एआई इंक्रोच कर रहा है, राइट. सो व्हाट इज द आइडिया कि अब यहां पर डिफरेंस क्या है कि एआई इज बेसिकली इंक्रोचिंग दो स्किल्स विच वर क्विंटेसेंशियली ह्यूमन, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. So now let's read. This development reframes the issue. तो अब basically जो issue है उसको reframe कर रहा है, right? क्या reframing हो रही है? Let's try and understand. That's not merely, सिर्फ ऐसा नहीं कि job quantity है, but job quality और accessibility का question आ गया. While the gig economy and tech startups have created employment, तो ऐसा नहीं है कि भाई employment create नहीं हुआ. The jobs which have been created, उनके साथ problem क्या है कि those jobs lack stability, राइट, बेनिफिट्स एंड क्लियर करियर ट्रेजेक्टरीज. तो क्लियर पाथ्स डिफाइंड नहीं है, राइट. सो देन देयर इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि जो करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसमें स्टेबिलिटी नहीं, उसमें करियर प्रोजेक्टरी नहीं दिख रही, राइट. जो कि किस तरह से प्रोजेक्ट होगा, करियर ट्रेजेक्टरी क्या है, वो दैट वी कैन नॉट सी. मोरओवर द स्किल्स डिमांडेड बाय द न्यू इकोनॉमी. तो अब इन एडिशन टू, तो कंसर्न्स क्या क्या है, राइट. यहाँ पे कंसर्न्स ही रेज कर रहे हैं. अब मोरओवर आइडिया को बिल्ड कर द स्किल्स डिमांडेड बाय द न्यू इकोनॉमी, कोडिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन. तो जो नई स्किल्स रिक्वायर्ड है, दीज कैन नॉट बी इजिली अक्वायर्ड, ये आसानी से आप अक्वायर नहीं कर सकते बाय दोज डिस्प्लेस्ड given the rising cost of education and persistent digital divide. So basically the idea is कि आप अगर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए स्किल सेट अक्वायर करना चैलेंजिंग है, राइट. तो द कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड हियर. लेट्स रीड फर्दर. चलिए लेट्स रीड दिस. सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट फियर ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट आर ओवरस्टेटेड. तो कई इकोनॉमिस्ट को लगता है कि जो आप ये मास एम्प्लॉयमेंट का डर लेके बैठे हुए हो, दिस इज ओवरस्टेटेड, आप ज्यादा चिंता कर रहे हो इसके बारे में, राइट. They suggest that humans will adapt, that humans will change, right, as they always have, and that productivity gains will eventually result in shorter work weeks, higher wages. So what will be the advantages, or new sectors unimaginable today? So eventually opportunities would be created and human race would adapt. Yet such optimism, पर आप इतना अगर आशावादी हो रहे हो, may rest on an assumption. तो assumption क्या है, किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ऑफ परफेक्ट लेबर फ्लूइडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एजिलिटी, राइट. सो अजम्पशंस दैट में फॉल्टर, अब ये अजम्पशन गड़बड़ा सकता है इन द फेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया. अब यहाँ पे कई ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं. तो कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो तुम इतने आशावादी बन रहे हो? कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको हिंडर कर सकते हैं, राइट. systemic inequality and that there's a lag between technological deployment and social adaptation, right. तो there is a huge gap. ये कैसे ब्रिज करेंगे, राइट. सो ये एक कंसर्न है जो ऑथर रेज कर रहा है. So ultimately the true threat may not be mass unemployment per se. तो कह रहे हैं कि एक्चुअल फिर ट्रू थ्रेट है क्या? मास अनएम्प्लॉयमेंट ट्रू थ्रेट नहीं है, बट एन इंक्रीजिंगली पोलराइज लेबर मार्केट. सो थ्रेट क्या है? पोलराइज. पोलराइज मतलब एक तरफ झुकी हुई, राइट. लेबर मार्केट ये एक थ्रेट है. A concentration of wealth and opportunity in elite cognitive sectors and a proliferation मतलब growth of precarious low wage jobs elsewhere. So this is basically जो equation है, जो abrupt है, जो imbalanced है, वो खतरा है.
In this light, technological unemployment is just not a matter of displaced labor, but of eroding economic dignity and the fraying of the social contract. So the real concern has been mentioned in a conclusive way, right? So I hope the passage is clear. Now let's take a look at the questions. The first question is there. तो primary purpose का question आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे अगर आपको पैसेज समझ में आ गया है तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी पर्पस जैसे क्वेश्चन के लिए रिविजिट नहीं करना. यू हैव टू बी वेरी वाइज. अगर पैसेज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है तो आप सेल कर जाएंगे. So, what is the primary purpose of the passage? To argue that technological progress inevitably leads to mass unemployment. तो ये तो पैसेज के अगेंस्ट हो गया ना. लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मास अनएम्प्लॉयमेंट तो डेंजर है ही नहीं, राइट? सो बेसिकली द आइडिया इज मोर और लेस लाइक कि जो पोलराइजेशन है वो समस्या की जड़ है, राइट? सो इनएविटेबल एक्सट्रीम भी हो गया, राइट? नाउ कमिंग टू बी, to explain why fear of technological unemployment are largely unfounded. They are not unfounded. Author is seriously concerned. So B is opposite. Coming to C, to critique the notion that technological change is always economically beneficial. तो क्लोज है बट अनइवन आउटकम्स और पोलराइजेशन की बात है तो हर बार इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होके आप नहीं बोल सकते, राइट? कमिंग टू डी, टू हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस. बैलेंस चॉइस है, इसको बिल्कुल रखेंगे. टू एडवोकेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ऐसा कोई आइडिया डिस्कस्ड ही नहीं है, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस. इनएविटेबली वुड बी एक्सट्रीम, राइट? आपको कई बार मैंने बताया क्लासेस में एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, राइट? So these are unfounded. This is opposite of what the passage is trying to suggest, right? This is close but again always economically beneficial. इसको आप validate नहीं कर सकते. D will be the right answer and this is out of scope. This has not been introduced in the discussion. All right, now let's take a look at the next question. Please try this. So which of the following can be most reasonably inferred from the passage? So let's take a look at the first option. वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय AI कैन ट्रांजिशन ईजिली. यही तो कंसर्न है कि जो ट्रांजिशन है वो ईजी नहीं है, क्योंकि जब पैसेज कहता है कि देर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस, राइट? और इस बार जो AI इंक्रोच कर रहा है मैकेनिकल लेवल पे नहीं कर रहा, कोग्निटिव और इमोशनल डोमेन्स जो क्विंट एसेंशियली ह्यूमन थे वहाँ पे कर रहा है, तो इट इज़ नॉट ईजिली, the transition is not easy. So A goes out, right? Coming to B option, historical responses to technological changes are not fully applicable in today's context. हाँ, ये जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया था और फिर आइडिया बिल्ड किया था, वहाँ पे आप भी जस्टिफाई कर सकते हो, राइट? Now coming to the third one, the gig economy offers more job security, so there is no such comparison, right? सो उसमें बोला भी कि दे आर लैकिंग जॉब सिक्योरिटी, राइट? तो जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, ये तो एक समस्या वहां पे रेज की गई है. द पैसेज सजेस्ट दैट ऑल AI विल इनएविटेबली इरोड. अगेन दिस इज बेसिकली ओवर जनरलाइजेशन. ऑल तो आप बोल ही नहीं सकते, फिर एक्सट्रीम हो गया. एंड कमिंग टू ई चॉइस, मास अनएम्प्लॉयमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड ड्यू टू द राइज ऑफ ऑटोमेशन. तो ये एक पोटेंशियल है, थ्रेट है, करंट रियलिटी नहीं है, राइट? इट हैज ऑलरेडी अकर्ड. नो, इट इज नॉट द करंट रियलिटी. So it's not the current reality. So this choice will go out, right? Inevitably this is extreme, right? और यहाँ पे बोल रहा था कि सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो एक कंसर्न है. सो दिस ऑल्सो गोज आउट, ठीक है? दिस कैन ट्रांजिशन ईजिली. और बाद में कह रहे हैं कि जो लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली अगर आप जाओगे पैराग्राफ पे, अगर आपको ज़रूरत लगती है ना, रिविजिट ज़रूर करिए कि भाई इतना आसान नहीं है मास एम्प्लॉयमेंट बट इन इंक्रीजिंगली पोलराइज लेबर मार्केट. यहाँ से आप आइडिया कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, राइट? सो
Transition is easy, we cannot say that. बचा क्या B, so B will be the right answer, right? Aggressive process of elimination करिए आप जब भी खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, जिससे आप देखते हैं जब भी मैं पैसेज एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, I give you the reason that why this choice is wrong, so you should be able to understand that if you're eliminating one answer choice, what is the problem with that, right? How the author is creating traps, right? The question creator is creating traps. एक बार वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई तो आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा आरसीज को सॉल्व करना, right? Let's take a look at the next question. So you could get some questions in reading comprehension which are influenced by CR. ठीक है, तो डरना नहीं है, you have to be just wise. So let's take a look at the question. Which of the following, if true, would most seriously weaken the passage argument about the polarization? तो कौन से आइडिया को वीकन करना है, डैमेज करना है, टारगेट करना है? अब ये ध्यान रखिएगा, आउटसाइड स्टेटमेंट करेगा, क्योंकि इफ ट्रू की कंडीशन लगी तो खुद ऑथर अपने आइडिया को डैमेज तो करेगा नहीं, राइट? सो इन आउटसाइड स्टेटमेंट वो डैमेज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट. So coming to A, government worldwide have begun providing free education in AI and data skills. ये तो adaptation में help करेगा, right? तो A can go out. Now coming to the second statement, emotional intelligent tasks are increasingly being automated by advanced AI. So this is not damaging the argument, right? Now coming to C option, AI technology has led to significant job growth in previously underdeveloped regions. तो ये तो पोलराइजेशन वाले आइडिया को वीकन कर रहा है ना, वो तो कह रहा है परेशानियां क्रिएट करेगा, ये तो कर रहा है कि अंडर डेवलप्ड रीजन्स में सिग्निफिकेंट जॉब ग्रोथ हो गई है, तो सी को आप रख सकते हो. ठीक है, सो द मेजोरिटी ऑफ जॉब्स इन द टेक सेक्टर रिक्वायर ओनली मिनिमल फॉर्मल ट्रेनिंग. अगर हम इसको सही भी बांधे तो इट इज नॉट नेगेटिंग स्टेबिलिटी और वेज डिस्पैरिटीज, सो दी ऑल्सो गोज आउट. स्टडी शो मोस्ट गिग वर्कर्स रिपोर्ट डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनकम. ये तो ऑथर के क्लेम को कि जो गिग जॉब्स है उनमें डिग्निटी या सेटिस्फैक्शन नहीं है वो सपोर्ट करता है, राइट? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सी हियर, राइट? तो बस अलाइन करिए टू क्वेश्चन. तो इसका ध्यान रखिएगा, इफ ट्रू, अगर सही माने तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है, बच्चे पैसेज में से आंसर ढूंढने लग जाते हैं. तो इफ ट्रू की कंडीशन इसलिए दी कि पैसेज में नहीं है, और फिर देखो अगर ऑथर खुद एक आइडिया को बिल्ड कर रहा है उसको खुद तो डैमेज करेगा नहीं ना, राइट? सो सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. Now there's one more question which is a specific detail question. This question I will give you as your homework. I will step aside ताकि screen पे question अच्छे से visible रहे. So do solve this question, right? And leave the answer in the comment section. आपको भी थोड़ा सा रीजन आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको पता चलेगा पैसेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड हुई, राइट? सो आई होप यू रियली फाउंड दिस सेशन प्रोडक्टिव. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, राइट? ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.